Hello students, today I am going to teach you how to execute a Python programming. You can see over my screen I have executed so many Python programming. You can see so many Python files are there. Now I am going to execute one by one few Python programming. As you know that we can execute Python in the integrated development learning environment. So I have executed few of the Python program and saved it in my desktop. You can see these are the Python icons. So suppose I will execute one of the program. So edit with IDLE. This is edit with the integrated development learning environment. Here you can see if I can increase the font size, then I will be able to see, then I will be able to show you Control Z because we cannot write like this. A equals to 5, B equals to 10, B equals to 10, C equals to A plus B and print C. So I have taken one variable A equals to 5 and I have taken another variable B equals to 10, C equals to A plus B, means I want to add both the number, and I want to print C, means in C I have added both the number. As you know, Python is very easy. So we just have to write like a normal English. We will initialize few variable and then print it and then we'll get the result. So I will click on run module. As I will click on run, you can see this is IDLE cell where I have got the output. I have taken A equals to 5 and B equals to 10, so the output is 15. So if the program is programmed to add two number, then just you have to take two variable. In one variable I have taken A equals to 5, another I have taken B equals to 10, and another in the third variable I have added both the number, that is C equals to A plus B, and I have taken the print of C, that is A plus B, that is 10 plus 5, and that is equals to 15 I got. Now I will show you another program which I have already executed. You can see I will edit it with IDLE again, and my programming is, this is slicing, string slicing. B equals to hello world. I have written over here. You can see B equals to hello world. I have written, you can see what is the syntax. B equals to hello world. B equals to double quotes hello comma space world exclamation mark and double quotes, and print B 2 colon. This is for slicing. In slicing, you know, we have the step start, stop and step. As we used to study for loop में क्या था, for loop में there were initialization था, conditional statement था, और then उसके बाद increment decrement. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे initialization है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में स्टार्ट वैल्यू है एंड देन स्टॉप वैल्यू है और स्टेप वैल्यू, मीन्स कितने स्टेप से आप लूप को, कितने स्टेप से आप प्रोग्राम को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो. सो यहाँ पे प्रिंट बी बिग ब्रैकेट 2 कोलोन. यहाँ पे ये क्या करेगा, व्हेन वी विल रन दिस कोड, then what it will do, we got the program. You can see LLO world. LLO world means we have written 2, means H और E 1 and 2 कैरेक्टर को छोड़ के इसने प्रिंट कर दिया, मीन्स इट विल एलिमिनेट, ये दो कैरेक्टर को इसने रिमूव कर दिया और हमें आउटपुट क्या मिली, LLO वर्ल्ड. सो दिस इज स्ट्रिंग स्लाइसिंग, मैन हमने दो कैरेक्टर को रिमूव करके वेरिएबल को प्रिंट कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर प्रोग्राम. लेट मी सी वेदर इट इज executed or not. Armstrong. So Armstrong number, I have written over here a program of Armstrong number. You can see Python program to check if the number is a Armstrong number or not. So what I will see, first I have taken first variable, that is num equals to int input enter a number.
enter a number, and then I have initialized another variable sum equals to 0. Then find the sum of the cube of each digit. Now I have taken another variable temp equals to num, और num में हमने क्या लिखा है, num में we need to take a number, num में हमें एक नंबर को एंटर कराना है. हमने sum नाम का एक वेरिएबल लिखा है जिसे 0 से इनिशियलाइज किया है. temp नाम के टेम्पररी वेरिएबल में हमने num को temp इक्वल्स टू num कर दिया. अब यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, हम चेक करेंगे while temp is greater than 0. जब तक temp में जो वेरिएबल है, मतलब num में जो वेरिएबल है वो 0 से बड़ा होगा, तब तक क्या करना है, डिजिट इक्वल्स टू temp मॉड्यूलस 10. हमें पता है मॉड्यूलस का रिजल्ट रिमाइंडर होता है. हम जो नंबर यहाँ पे होगा, सपोज द नंबर 10 है, तो 10 मॉड्यूलस 10, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 1 जा 10, हमें रिमाइंडर 0 आएगा. तो temp मॉड्यूलस 10 का रिजल्ट हो जाएगा 0. यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट इन मल्टीप्लाई 3. अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का वो क्यूब हो जाएगा. एंड टेम्प फ्लोर डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 10. ये डिवीजन की तरह ही है फ्लोर डिवीजन, इसमें हमें क्वोशिएंट रिजल्ट आएगा. डिस्प्ले द सम, डिस्प्ले द रिजल्ट. अगर नम इक्वल सम, नम में जो वैल्यू है वो सम के इक्वल आ गया, सम में क्या है 0, 0 के इक्वल आ गया, तो नम क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, एल्स नम आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है. हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जैसे 121 151, एंटर नंबर. तो हमने एंटर किया 151, इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर, बट ये वन टाइम ही एग्जीक्यूट करेगा. हम दूसरी बार लिखेंगे तो वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो ये प्रोग्राम का लॉजिक है. एग्जाम में बस हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे केवीएस एनवीएस के एग्जाम में ये छोटा सा प्रोग्राम का चंक दे देगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट. ये यहाँ से ये दे देगा व्हाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड्यूलस 10, और बोलेगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम, तो उसके लिए हमें हर प्रोग्रामिंग को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है. नेक्स्ट वी हैव अरे का प्रोग्रामिंग किया है यहाँ पे, उसे भी हम एडिट करेंगे आइडियली से. ये अरे का प्रोग्राम है. लेट मी सी वेदर इट इज एग्जीक्यूटेड और नॉट. आई थिंक हियर वी हैव सम इंडेंटेशन प्रॉब्लम. हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ये कोई भी आउटपुट नहीं आया. ये इस प्रोग्राम में मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. विल क्लोज इट, और आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है, बट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है. सो आई विल एडिट इट विद आइडियली, and ideally I am going to execute this program. So here you can see I have taken a variable ARR. ARR मैंने लिया है. ARR में मैंने कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज किया. ये अरे है, यू कैन सी बिग ब्रैकेट है 10 20 30 40 12 11. अरे का काम क्या होता है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सेल सॉर्ट. इनका काम होता है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. अब वो हर सॉर्टिंग का अलग अलग वे है. बबल सॉर्ट में वो 1 by 1 कंपेयर करता है 2 एलिमेंट्स को. इंसर्शन सॉर्ट में वो लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करता है और मिड वैल्यू निकाल के कंपेयर करता है. वैसे ही तो अरे में क्या कॉन्सेप्ट है, पहले हम एक इंडेक्स लेते हैं, डिफाइन एल शिफ्ट अरे एन. हमने दो वेरिएबल लिया, यहाँ पे एल शिफ्ट है, एल इक्वल्स टू लेंथ ARR. ये एक फंक्शन है जो अरे का लेंथ डिटरमाइन करेगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है हमारे पास, तो अरे का लेंथ हो जाएगा 6. यहाँ पे हम 4x इन रेंज, 4 लूप चलाएंगे, x इन रेंज 0 to n. रेंज जब तक 0 to n, मतलब जितना यहाँ पे जितना वैल्यूज है वहां तक चेक करो, उसके बाद टर्मिनेट हो जाओ. y इक्वल्स टू ARR 0. y अभी कहाँ पे रहेगा, 0th इंडेक्स पे. y अभी 0th इंडेक्स पे रहेगा. फिर फॉर i इन रेंज 0 and n, अगेन फॉर लूप चेक करेगा, y इक्वल्स टू ARR 0. फॉर i इन रेंज 0 to n, y इक्वल्स टू ARR 0. फॉर i इन रेंज 0 L-1. L-1 मतलब ये लिस्टिंग में क्या होता है, हमेशा एक वैल्यू कम होता है. जैसे अगर लेंथ 5 है तो वो 4 लेगा.
ARR इक्वल्स टू ARR+1, मतलब हमने जो पढ़ा था जावा प्रोग्रामिंग में कि अगर वैल्यू जैसे दो एलिमेंट को कंपेयर करना है, सपोज 10 एंड 20 को, तो 10 छोटा है, 20 बड़ा है, ठीक है, 30 बड़ा है, ठीक है, 40 बड़ा है, बट 12 यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ तक कोई सॉर्टिंग नहीं होगी, बट जैसे ही ये 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे आएगा, यहाँ पे एलिमेंट छोटा है तो इसे स्वैप करना है। तो यहाँ पे ARR इक्वल्स टू ARR+1, जहाँ पे एलिमेंट उसे बड़ा मिलेगा वो उसको ये एलिमेंट यहाँ चला जाएगा। ARR L-1 इक्वल्स टू Y, फिर वो अरे का इंडेक्स एक एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगा, फिर उसको प्रिंट कर देंगे। फिर ये 1 2 3 4 टाइम ये पास चलेगा, 4 टाइम ये आइट्रेशन चलेगा, तब ये 12 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद 11th को कंपेयर करेगा, और जब तक ये 11 12 10 11 12 20 30 होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो दिस इज सॉर्टिंग। सो ऐसे करके हमारे पास बहुत प्रोग्रामिंग है, और हमें प्रोग्रामिंग का लॉजिक को समझना है, हाउ टू एग्जीक्यूट दोस प्रोग्रामिंग वो समझना है। So I hope you have understood few of the Python programming. So I will make you understand in the next few videos. Thank you very much.